ओके, ए सिंक्रोनस काउंटर में हमने क्या किया, हमने पहले तो एन बिट काउंटर बनाया, ओके, फिर एन बिट काउंटर बना के हमने उसको ट्रंकेट किया, उसको हमने जैसे वी हैव मेड 3 बिट काउंटर, तो टोटल 8 स्टेट। फिर 3 बिट काउंटर से हमने क्या किया, हमने मॉड 6 काउंटर बनाया, मॉड 5 काउंटर बनाया, ओके। सो यूजिंग हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है और 3 बिट काउंटर है, ओके। सो वी कैन मेक एनी काउंटर from 1 to 7, okay. Similarly, if you have a 4 bit counter, so even 4 bit counter we can make any counter, 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, okay. While doing synchronous counter, we didn't do 3 bit or 2 bit synchronous counter, we directly did truncated counters, okay, like mod 6 mod क्या किया था, mod 6 किया था कल, mod 6 synchronous counter, mod 6 है, mod 6 किया था। तो I know it is not possible to do everything in class ना, because what we did in mod 6, okay, same we can do for mod 8 also. If you are doing for mod 8, okay, up counter, that will be 3 bit synchronous counter. Similarly, if you do down, okay, that will be 3 bit down synchronous counter, like we did in our case of asynchronous counter. Method is same. You have to first find how many flip flop you want to use, okay, and once you know the flip flop, you have to write the states, okay. Once you know the states, okay, you can write your excitation table, okay, and then you can use the K-map, you can minimize, and after minimizing you can draw the logic circuit. So method same है, कोई method में कोई change नहीं है, okay. You can do it yourself. Still, if you have a doubt कि सर नहीं हो रहा है, so I'll take 1 or 2 more classes, okay. So उसमें I will draw 3 bit synchronous counter, 2 bit synchronous counter. Okay, you can try yourself, okay, and you can verify from books or internet, okay. That is quite easy. जैसे हम कर रहे हैं ना अभी ट्रंकेटेड की, क्या ट्रंकेटेड में क्या कर रहे हैं, खाली हम वेरिएबल आर लेके आते हैं एक्स्ट्रा, है कि नहीं, ट्रंकेट करते हैं, और उसमें ट्रंकेट नहीं करते, उसमें एसिंक्रोनस में ना सर वेरिएबल आ जाता है। हाँ इस पता, और सिंक्रोनस में क्या आते हैं, सिंक्रोनस में क्या आते हैं, सर सिंक्रोनस में गेट आते हैं, सर एक्स्ट्रा जे के हाँ, गेट आते हैं, एक्स्ट्रा गेट आते हैं, एक्स्ट्रा गेट आते हैं। अगर आप 3 बिट करोगे और 3 बिट से आपको ट्रंकेट करना है तो कुछ एक्स्ट्रा गेट आ जाते हैं, ओके। मेथड वही है, तो डिले के लिए गेट आ जाते हैं उसमें, ठीक है, एसिंक्रोनस में। सो दैट इज योर, तो टुडे वी विल डू सम प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा आसान आता है, डिजाइनिंग की प्रॉब्लम तो आपके नहीं आती है, इतना नहीं आ पाएंगी, फिर भी आपको डिजाइनिंग आना चाहिए, डिजाइन देख के आपको पता चलना चाहिए किस तरह काउंटर है। सो वील टेक फ्यू मोर क्लासेस, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो उसके लिए 1-2 क्लास फिर ले लेंगे हम लोग, ओके। एंड जो जैम के बच्चे हैं उनके लिए तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो चाहते हैं तो करें, ओके, नहीं चाहते हैं तो फिर वो छोड़ सकते हैं, कि अभी उनके लिए ये सब जरूरी नहीं है, ओके। सो लेट अस डिस्कस वन प्रॉब्लम व्हिच केम इन गेट EC, okay. So we have this 4-bit binary counter, 4-bit binary counter, okay, synchronous counter है, okay, synchronous counter है। So yeah, I am giving clock, synchronous counter, synchronous 4-bit binary counter, सारे काउंटर बाइनरी काउंटर ही है क्योंकि हम लोग तो 1-0 यूज कर रहे हैं, okay. So this 4-bit synchronous counter, okay. So in question they're giving 4-bit, that means they have 4 states, 4 states of a flip flop output, okay. Actually there is a 8, one is a one flip flop had 2 states, okay. So I'm writing only q output, so say qa, okay, qa, qb, qc, qd, okay. These are the 4 states. Now what it is doing, it is applying clear, a clear input, and clear is connected to QB and QC through NAND gate, okay. So QB, QC, and you are applying to this is in NAND gate, okay. Now is asking, okay, this is the mod n counter, okay.
So you're asking what is the value of n? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भी? अगर इसमें अगर NAND गेट नहीं होता, सर आ गया। NAND गेट नहीं होता तो ये क्या होता? 16 mod n, तो 4 है तो आपके 16 स्टेट होती, बट नाउ देयर इज नो 16 स्टेट। नाउ क्योंकि हम एक्स्ट्रा NAND गेट लगा रहे हैं तो दैट मींस वी आर truncating, okay, we are deleting some state. So now you have a four state, okay, so you have to make table, और टेबल लेके बताना है कि कहाँ पे सीक्वेंस खत्म हो रहा है कहाँ पे सीक्वेंस खत्म हो रहा है, और तो उसके बाद हमको स्टेट काउंट करनी है। अब कहाँ पे सीक्वेंस खत्म होगा बताओ? इस क्वेश्चन में सीक्वेंस कहाँ पे खत्म होगा? जब क्लियर को 0 मिलेगा, व्हेन क्लियर 0 इज मींस व्हाट? बार मींस क्लियर 1, और क्लियर 1 का मतलब क्या है? रीसेट। क्लियर 1 विल रीसेट एवरीथिंग दैट्स ट्रू सर। 0 0, ये तो पता है ना? यस तो सर। ये 0 आना चाहिए। अब ये 0 कब आएगा बताओ? सर क्यू और सी दोनों, डी को दोनों को 1 होना पड़ेगा। वेरी गुड, क्यू सी और क्यू डी। ओके। क्यूबी एंड क्यूसी, ओके। क्यूबी और क्यूसी क्योंकि दोनों से कनेक्टेड, ए और डी कनेक्टेड नहीं है, बी और सी। क्यू क्योंकि क्यू और पी इनपुट है, ये 1 1 होगा तो ये 1 होगा, फिर 1 का उल्टा होगा 0, so the both has to be 1 1, okay. Now you have to draw the table and you have to find in which case it is 1 1 1 1 कब होता है? क्यूबी क्यूसी 6 में, 6 में और किस में होता है? बी क्यू, Yes, sir. 1 1. आई एम राइटिंग क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ओके। सो ये 1 1 कब होगा? इस स्टेट में 1 हो जाएगा, ओके। दैट मींस ये स्टेट कौन सी है? ये स्टेट कितनी है? 2 and 4 6, दिस स्टेट इज 6, ओके। तो 6 पे मतलब 6 पे ये रीसेट हो जाएगा, मतलब 6 को ये 6 पे ये 0 0 0 0 हो जाएगा, ओके। दैट मींस इट कैन काउंट ओनली अप टू 5, it can count only up to 5, that means or state है from 0 to 5, that means it is a mod, and this is a mod 6 counter, okay. This is a mod 6 counter. If you want you can draw the table. Let me draw the table also. So हम हाँ बोलिए। क्यूसी ऐसा क्यों नहीं दे रहे एलएसबी? मतलब लास्ट टाइम हम ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, ठीक है। ये इसको आप क्यूडी बोल दो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, ओके। क्वेश्चन में इसको क्यूए दे रखा है, और नाम हो तो कुछ भी सीक्वेंस दे रखा है, ओके। यू सिंक्रोनस काउंटर में इफ यू से दिस इज माय क्यूडी, दिस इज एमएसबी और दिस इज माय एलएसबी, दे कैन डू एनीथिंग, ओके। इन ए सिंक्रोनस देयर वाज लिमिट, अगर पहले कोई आपको एलएसबी लेना पड़ेगा। इसमें तो क्वेश्चन में जैसे देगा वैसे तो जनरली तो यही होगा, ये आपका एमएसबी है एंड दिस इज योर एलएसबी, ओके। सो लेट मी, क्योंकि नाम है खाली, ओके, दिस नॉट क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है। यू कैन हाँ, ऐसा नहीं है कि डी होगा तो वो तो हम लिख रहे थे, हम बता रहे थे कि ये आपका सीक्वेंस है, ओके। अब मैं क्यूए को नंबर 1 भी दे सकता हूँ, ओके। क्यू बी क्यू सी डी, और उसको उल्टा भी कर सकता हूँ, लिखने में क्या है। तो यहाँ पे ये आपका सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस ये दे रखा है ना, क्यू ए बी क्यू सी क्यू डी, ओके। हाँ बोले सर। क्लॉक 1 पे तो रीसेट होता है ना सर? क्लियर 1 पे, सॉरी क्लियर 1 पे हाँ रीसेट, क्लियर 1 पे तो सब reset होता है। सब 0 0 होता है। तो क्लियर 1 कब आएगा? जब क्लियर बार 0 आएगा। और क्लियर बार 0 कब आएगा? जब दोनों 1 1 है, ओके। सो यू कैन उसके बाद मॉड 6 कैसा आया सर? मॉड 5 स्टेट काउंट करो ना। यू हैव क्यू डी, सो क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ओके, एंड देन यू हैव a clock, okay. Say beginning, say they are set at 0 0, okay. Now when you apply clock 1, okay, this becomes 0 0 0 1 first state, okay. I'm writing because this is a mod 4 bit, so there should be 16 state, okay. So I will start writing, and I'm writing for which state the clear is 0. When clear is 0, you have to stop there, okay. Now this is second pulse, this will be 0 0 1 0. Third pulse it will be 0 0 1 1. Fourth pulse it will be 0 1 0 0. Fifth pulse it will be
0 1 0 1 ओके नीचे जा रहा है क्या so for fourth pulse it will be 1 0 1 0 0 okay for fifth pulse and for sixth pulse okay for sixth pulse it will be what fifth pulse it will be 0 1 0 1 okay sixth pulse it will be 0 6 के लिए क्या होगा 1 1 0 okay now qb and qc is 1 okay so clear is input qb qc so this is 1 1 1 1 1 1 only this state it will be 0 okay कट रहा है क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है are you able to see huh? are you able to see this one okay just give me 1 minute just give me 1 minute मैनेजेबल है okay मैनेजेबल है ना so now this is 0 तो जैसे ही ये 0 आएगा okay it will reset to 0 0 0 0 0 okay so this is the same state so you can go up to here only you can count up to 5 only so now state 1 2 3 4 5 6 there are 6 states this is so n is equal to 6 okay or you count 1 2 3 4 5 6 okay if you assume this is new state this is 1 2 3 4 5 6 so n is equal to 6 is it clear to everyone yes sir सर हाँ यस सर इसमें 6 स्टेट में QB इक्वल्स टू QC 1 आया इसलिए आदमी कह रहे हैं ना कि 5th तक ही हाँ जाएगा तो जो 6 में 1 1 आ गया ना तो यहाँ 1 में Yes, यहाँ 1 में आते ही ये 0 हो जाएगा ये 0 Yes, ये 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इसको सबको 0 0 रीसेट कर देगा ओके okay, फीडबैक के थ्रू सबको 0 सेट कर देगा सो Okay, दैट मींस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा आपका ट्रंकेट हो जाएगा 16 सेट तक नहीं जाएगा ओके तो दिस इज मॉड 6 काउंटर तो देखो मैंने अभी 4 बिट लिया और 4 बिट से भी 6 बना दिया जनरली हम क्या करते हैं पहले 3 बिट का लेते हैं 3 बिट का लेते हैं 8 स्टेट का लेते हैं उसमें 6 बनाते हैं यहाँ पे 4 से भी 6 बन गया तो यू कैन कन्वर्ट एनी काउंटर एनी मॉडर्न काउंटर to mod 1 counter mod 2 counter mod 3 counter mod 4 counter using just NAND gate okay I'll give some assignment then you'll understand so this was gate EC question there one more question we have सर हाँ बोलिए बोलो सुल्तान सर एनालॉग टू डिजिटल हम लोगों को शायद नहीं हुआ था हाँ वो भी डिजिटल हुआ था हाँ वो भी करा देंगे वो भी ओके D1 Q1 okay so this is your Q1 okay OR gate this is going here okay this is going here and this is going here okay Q0 going also here this is your clock okay and this is a positive triggered clock okay so ये पूछ रहा है what is the sequence सर ये नॉट गेट है नॉर गेट है no NOR gate what is the सर लेकिन एक ही इनपुट है एक नहीं दो है ना एक तो ये जा रहा है एक तो यहाँ से जा रहा है एक तो यहाँ से जा रहा है ओके एक यहाँ से ये Q1 जा रहा है एक Q0 जा रहा है ओके इनपुट क्या है Q1 है और Q0 है ओके सो इस इज आस्किंग व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ Q0 और Q1 Q0 और Q1 का सीक्वेंस क्या है स्टार्ट ऑप्शन दे रखे हैं स्टार्टिंग में सब में 0 0 दे रखा है स्टार्टिंग सीक्वेंस ओके सो फर्स्ट इज 0 0 Q0 का सीक्वेंस नेक्स्ट क्या होगा बताइए 0 1 okay so first is 0 0 that means your Q0 is 0 Q1 is 0 next state में क्या हो जाएगा ये 0 यहाँ से 0 यहाँ पे जाएगा this 0 और 0 यहाँ पे जाएगा तो ये क्या 0 और 0 को उल्टा 1 ओके तो यहाँ 1 आएगा तो आपका Q1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जैसे ये 1 आएगा ओके जैसे ये 1 होगा this 1 this Q1 become 1
करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 0। ओके, फीडबैक इसी से जा रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा उसके बाद में, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 1 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 1 0 अगेन, सर 0 होगा सर। अगेन सर 1 0 जाएगा, क्यू नॉट के लिए 0। क्यू नॉट की जरूरी, और Q1 क्या होगा, यहाँ पे सर Q1 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब 1 आया था, जब यहाँ पे 1 आया था, तो ये भी तो 1 नहीं, ये 1 नहीं होगा क्या, हाँ सर। तो क्या 0 0 1 1, सॉरी, लेट मी डू इट अगेन। ओके, सो सर क्लॉक भी तो वो है ना सर। एक मिनट। Okay, so the starting is 0 0. Now you are applying clock. Okay, so we are applying clock. Okay, this is 0, this is 0. They are going to here. Okay, they are going here 1. Okay, so now 1 will come here. This become 1. Okay, and here it was 0 only, 1 0 only. Okay, so 1 0. I'm not sure. Okay, this Q sequence of okay, I'm doing wrong. One minute. They are asking question sequence of Q1 Q0. I was doing Q1 Q0. That was I was mistake. Okay, so they are asking sequence of Q1 Q0, not Q0. They are asking sequence of Q1 Q0. Okay, now let me do again. Okay, so the first is 0 0. Okay, now second में क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 1. Okay, थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या होगा, 1 0 1 1 1 0 करेक्ट। फोर्थ में 1 1 फोर्थ में 1 1 कैसे आएगा, फोर्थ वापस चेक कैसे आएगा, फोर्थ में अब 1 0 है, Q1 is 1, this is 0, तो क्या आएगा, 1 0 क्या हो जाएगा, 1 1 का 0 आ रहा है सर। 0 आएगा, तो Q0 0 नहीं आएगा, Q0 0 आएगा, और ये तो 0 है ही, तो 0 आएगा, तो 0 0 नहीं आएगा। yes sir ठीक है, so we're starting from 0 0. Okay, so when we are starting 0 0, I'm getting 1 here, 0 here, I'm getting 1 1 0. Okay, sorry, 0 1 0 1. Okay, then again when you're applying 0 1, okay, 0 1 0 1 1 0, I'm getting 0 here. Okay, so 0 here, so and here यहाँ पे 1 कैसा आया, जो पहले जो 1 आया था, this will be input here. Okay, this one, so I'll get 0 1. Okay, and again when it will go here, when it will go 0 will, sorry, am I doing wrong? सर जब ये ऊपर जाके एक मिनट, this is a one input, both going here and there. Okay, so let me do it again. Okay, so we have 0 0 in the beginning, we have a 0 0. Okay, we have a 0, this is 0. Okay, this is 0. Now both 0 0 going 0, this is coming 1, this is coming out 1 as 1. Okay, so this Q0 is 1, so here already 0, so I'm getting 0 1. Okay, correct hai? Okay, now we have here 1, so now 1 and 0, 1 and 0 going, so this is 1 and 0 1 0, so this is coming 0. Okay, so, and here we have 1, so it will become 1. Okay, so I'll get what, 1 1. What is going सर on? ये इधर 1 हो के Q1 1 कैसा हो जा रहा है सर? ये Q0 कैसा हो रहा 1 है, हो रहा है तो सुदान कैसा हो रहा है ये, सर ठीक ही तो है। ये 0 पे पहले 0 0 है ना, सो आई एम गिविंग, हाँ सर 0 तो 0 1 होगा, 0 1 होगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इज 1 0 ही तो होगा, 1 0, और उसके बाद में उसके बाद 0 0 आएगा। ओके 0 0. ओके, सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कैसा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सर मुझे इनपुट सर ये तो डी इनपुट फ्लिप तो डी फ्लिप हो समझ ना में सर, आ रहा है कैसा निकल रहा है। हाँ सर ये तो डी फ्लिप फ्लॉप है ना। हाँ, डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है भाई, जो इनपुट लोगे वही तो यही पाता है। यस सर, तब जी जब सर। Q0 हमारा 1 हो जाता है तो हमारा D1 जो उसका पहले का है वो भी 1 हो जाएगा ना, Q0 सेकंड जो स्टेज हमने हाँ लिखी हुई है ना हाँ 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 उसमें, हाँ उसमें हाँ Q0 1 हो रहा है। हाँ, तो जब हमारा Q0 1 हो रहा है तो हाँ। D1 भी 1 होना चाहिए, D1 1 हो रहा है तो Q1 भी 1 होना चाहिए ना, D फ्लिप फ्लॉप है तो। नहीं जी सर। नहीं, जब यहाँ पे देखना पड़ेगा इनपुट क्या है,
यहाँ पे इनपुट जब क्लॉक पल्स आ रही है तब इनपुट क्या है, तब इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट क्या है। तो जब क्लॉक आ रही है तब यहाँ पे इनपुट 0 था ना, क्लॉक आ रही है, वही मैं कह रहा था, वही इसी को बनाने की कोशिश कर रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग। ओके, सो अब ये स्टार्ट विद द बिगिनिंग। ओके, आई हैव अ 0 हियर, आई हैव अ 0 हियर। ओके, नाउ क्लॉक इज कमिंग। ओके, क्लॉक फर्स्ट, लेट अस से नाउ फर्स्ट क्लॉक इज कमिंग। अब टेबल ड्रॉ करो, सबसे बेस्ट यही है, यू ड्रॉ टेबल, तभी समझ में आएगा। सो यू हैव Q1, you have Q0, okay, you have a clock, okay, we have a 0 0 state। okay, now I am giving first clock। okay, तो first clock में क्या होगा कि यहाँ पे we have 0 0, so when it is 1, now I'm giving clock। okay, so here input is 0। okay, now clock is coming, so when clock will come, it will give 1 here। okay, sorry, Q1 0 and Q0 is 1। okay, now Q0 1। okay, now state देख लो क्या है वापस, now state is 0 1। okay, so Q1 पे क्या है, you have 0। okay, still 0, and Q0 पे you have 1 1। okay, Q0 पे 1, Q0 पे 1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इस पे क्या है, यहाँ पे 1, वही तो Q0 है ना सर। हाँ ये तो Q0 1 है, yes sir। तो ये यहाँ पे 1 है। ओके, now this 1 0 is coming, 1 0 1 0 will 1 0। now कल 2 pulse 2 will come, so pulse 2 will come, then Q0 is 0, Q0 0, so Q0 will be 0 and Q1 will 0, be 1। okay, Q1 1 sir। Q1 1। okay, so you'll get 1 0। now third pulse will come, और थर्ड पल्स से पहले सिचुएशन देख लो, थर्ड पल्स से पहले आपका Q0 0 है, so Q0 is 0। सर इसमें Q1 and 0 कैसे होगा Q1 is 1। अब मैं बार बार तो नहीं करा पाऊंगा तुमको, तो अब स्टेट लिख लिख के चेक करो अपने आप। ओके, सर फिर से 1 आएगा ना सर? कहाँ पे, अभी देख रहे हैं ना, फिर से 1 आएगा फिर तो। अब ये 0, अब यहाँ पे क्या है 0 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, सर 1 आएगा, 0 आएगा yes, 0 सर। आएगा। और Q0 फिर से 1 हो गया। अब कहाँ से 1 हो गया, अब पल्स आएगी, अब यहाँ पे इनपुट ये है, यहाँ पे इनपुट ये है, अब पल्स आएगी। Q1 yes, पे sir। क्या है, Q1 पे 0 है ना ऑलरेडी। ओके, और ना yes, sir। अब ये आउटपुट यहाँ पे 1 था, यहाँ तो 0 है। ओके, ना पल्स आएगी, yes, sir। तो पल्स आएगी तो क्या करेगा, इसको भी 0 करेगा, इसको भी 0 करेगा। दिस इज द सीक्वेंस। ओके, तुम करके देखना, हो जाएगा। Shall I erase this one? yes sir। हो जाएगा, आसान है, कुछ वो तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा लॉजिक है तो कंफ्यूजन तो होता ही है, but this is easy। okay, the correct answer, what was it, I have written correct answer। okay, so this was your some question। now we are starting shift register। okay, okay, not simple register, this is REG। okay, shift register, also E register। okay, so because we want to study shift register counter, so before we understand shift register counter, let me introduce shift register। register क्या करता है, register is store and transports your data। okay, so what is the definition of shift register? okay, shift register okay, are logic circuits okay, which are used okay, for the storage okay, and transfer of digital data। okay, digital data, this is the definition of shift register। okay, now there are a variety type of shift register। okay, so let me now classify the shift register। can I erase this one? इसको Yes, erase कर sir। दो, erase कर दो ना। okay, और कुछ लिख ले पा रहे हो तो वापस वीडियो देख के देख लिया करो। okay, so shift register can be classified many ways। okay, so the two ways are there, based on the direction of data movement। okay, based on the
based on the direction of data movement. बहुत आसान है. Okay, क्वेश्चन में आसान होते हैं. And based on input output mode, based on input output mode. Okay, so डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डेटा लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है या बाई डायरेक्शन आ रहा है. ओके, सो बेस्ड ऑन डायरेक्शन वी कैन क्लासिफाई शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, ओके, देन शिफ्ट राइट रजिस्टर, okay, and then there is a bi-directional register. Okay, so these are the based on direction. Now if you want to see based on the input output, okay, so this is important. Okay, input means whether they are coming serially coming, they are coming serially input, and output also serial. Okay, so serial input, serially output. Okay, so serial in, serial out, serial in, serial out, serial in, serial out. सीरियली आ रहे हैं अंदर, सीरियली जा रहे हैं. ओके, जैसे ये आपका सपोज 3 बिट रजिस्टर है या 4 बिट रजिस्टर है, डेटा सीरियली आ रहा है और सीरियली जा रहा है. ओके, अब ये राइट में जा रहा है तो इसको बोलेंगे सीरियल इन, सीरियल आउट. ओके, राइट शिफ्ट रजिस्टर. Okay, or similarly it can go left, it can go left also. Okay, so this is a 4 bit, means there are 4 flip flops. Each flip flop can store 1 bit. Okay, so if I want to store 4 bit, I need 4 flip flops. So this is the input of first flip flop. Okay, so this is a type of register. Data will come serially in and serially out. Okay, that will call SISO. In short, it is known as a SI, serially in, serially out. Okay, similarly it can come serially in and parallel out. Okay, so the second thing is serial in, parallel out. You can understand what SI means: serial in, parallel. This O for output, parallel out. Okay, and then it can come your parallel in, serial out. Okay, parallel in, serial out. And the fourth one क्या आएगा? The fourth one is what? Parallel in, parallel out. Parallel out. Okay, short में खाली नाम क्लासिफिकेशन याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो हम करेंगे मेनली सीरियली पे करेंगे. Okay, so these are your types of register. Okay, now can I erase this one? पैरेलल आउट कैसा होगा सर? अब तो कराएंगे तो देखेंगे ना. अभी तो क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं. ओके, पैरेलल आउट कैसे होगा? ये आपका रजिस्टर है 1 2 3 4, इसमें पैरेलल इन हुआ और पैरेलली आउट हो गया. ओके, so now let me discuss this is one by one. Okay, so पैरेलल का मतलब सारे अगर सपोज हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है. ओके, अब या तो करें एक साइड से उसको हम दें, इनपुट दें. ओके, और सीरियली लें. एक बार हम सीरियली इनपुट दे रहे हैं और जितना भी आउटपुट्स आ रहे हैं उनको पैरेलली ले रहे हैं. ओके, और हमारे पास 4 आउटपुट हैं, चारों को हम चार इनपुट हैं, चारों को हम पैरेलली इनपुट दें और चारों से हम पैरेलली इनपुट आउटपुट ले लें. ओके, so that is parallel. Okay, now we have serial in, serial out register, SISO. Okay, so I am drawing 4-bit serial in. Okay, so this is mainly made of D flip flops. This is my flip flop. Counter के लिए important है, that's why I am discussing this one here. Okay, so this is my D flip flop. Okay, D flip flop. Okay, so we have here QD bar, QC bar, QB bar, okay, QA bar. Okay, and these are synchronous counter. Okay, so
say this is the negative triggered synchronous counter. So this is clock. Okay, you can put it here, clock. Okay, so you can put here clock. Okay, so this is coming here, this coming here. Okay, this coming here, and this is the output. Okay, so this is your serial 4-bit serial in serial out. Okay, और क्या ये शिफ्ट लेफ्ट है कि शिफ्ट राइट है? शिफ्ट लेफ्ट है कि शिफ्ट राइट है? सर सिर्फ राइट होगा सर। शिफ्ट राइट. ओके, शिफ्ट राइट. ओके, register. Okay, so this is your now suppose. Okay, सर now ये कैसे देखें? हाँ हाँ शिफ्ट राइट और लेफ्ट सर कैसे देखें? जहां से इनपुट कहां से देंगे? इनपुट यहां से दे रहे हैं. ओके, दिस इज इनपुट, यहां से इनपुट दे रहे हैं हम लोग. ओके, इनपुट and we are taking output from here. Okay. So if you're taking input, if you're giving input from left, okay, taking output from right. Okay, so based on this data कैसे move कर रहे हैं? इनपुट से इनपुट से आउटपुट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. That means these are shifting right. Okay, now let me draw the two table for this one. Okay, now D flip flop की ये क्या होगा? Whatever input will be come here. Okay, जो इनपुट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, पल्स आते ही वो इनपुट क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा. Isn't it? Yes, sir. ओके, जैसे पहले Yes, कर sir. रहे थे, जो भी इनपुट यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज यहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो जैसे ही पल्स आएगा ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. ओके, दैट्स व्हाट वी कॉल शिफ्ट रजिस्टर्स. ओके, सो नाउ लेट मी ड्रॉ द सर ये कैसे होगा सर? कैसे भी मतलब सपोज, शिफ्ट हो हाँ बता तो रहा है अभी भी. जैसे मेरे पास क्लॉक in the beginning, suppose I am taking I have a say initial state is 0 0 0. Okay, or suppose say I have initial state 0 0 0 0. Okay, so QD is QD, QC, QB, QA, they all are 0 0 0 0. Okay, when there is no clock, this is my state. Okay, now I am giving a input 1 here. यहाँ पे तो कोई इनपुट नहीं है ना, यहाँ पे क्या कुछ इनपुट है क्या? अभी I have state QD, QC, QD, ये स्टेट है मेरे पास. नाउ देयर इज नो क्लॉक. ओके, अगर यहाँ पे कोई इनपुट दे भी रखा है और मैंने क्लॉक नहीं दिया है, तो वो इनपुट तो इनइफेक्टिव है. Clock will be effective only, input will be effective only when there is high clock. Okay, so if there is no clock, okay, जैसे हाई क्लॉक आएगा तो ये इफेक्टिव हो जाएगा. तो ये तो अब इसके लिए इनपुट ये है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा. ओके, और इसका और इसमें पहले 0 था तो ये 0 रहेगा, इसमें पहले 0 था 0 रहेगा, ये 0 रहेगा. ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ द टू टेबल नाउ. हाँ सर इसका ये तो फ्लिप फ्लॉप का सर्किट होगा ना सर, ये जो बॉक्स है जो अपना? हाँ हाँ हाँ, ये फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है. तो सर हाँ हाँ, लेट सर क्लॉक तो सब में आ रहा है ना, तो हाँ. एक में खाली 1 क्यों हो रहा है, बाकी सब में क्यों नहीं? क्लॉक तो एक साथ इनेबल हो रहा है ना. जिस पे इनपुट लगा हुआ है वो इनपुट आ रहा है. हम पहले पे इनपुट 1 लगा रहे हैं, बाकी पे तो इनपुट 0 0 ऑलरेडी है ना. स्टेट पे डिपेंड करेगा ना किस पे हमने इनपुट लगाया. पहले में इनपुट तो कुछ था ही नहीं ना. पहले में इनपुट क्या है? सेकंड पे इनपुट है, थर्ड पे इनपुट है, फोर्थ पे इनपुट है, लेकिन फर्स्ट पे क्या इनपुट है? फर्स्ट तो इनपुट है ही नहीं. अभी मैंने जो ड्रॉ किया था सर्किट, दिस इज माय 1, दिस इज माय 2, दिस इज माय थर्ड, सेकंड थर्ड 4. अब ये D है, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है. यहाँ पे क्या है? Q. ओके, Q bar. So I'm connecting with D. This Q I'm connecting with this D. This Q I'm connecting with this D. Okay, I'm assuming that I have reset everything. Okay, so in the beginning it is 0 here, 0 here, 0 here. Okay, this is Q, 0 here, QD, QC, QB, QA, all are 0. पर यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है. Okay, in the beginning it is the state of flip flop. QD, QC, QB, QA, the state of flip flop. अभी मैंने इस पे इनपुट लगाया नहीं है. Okay, now I'm going to apply input. Okay, so
Okay. So जो हम इनपुट देते हैं वो पूरा एक ही क्लॉक पोल्स को ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, okay, let me draw the truth table. Okay, then we'll discuss QD, QC, QB, QA. Okay, and we have a clock here. Okay, now you have to remember what is your, this is your QD, QC. Okay, QD is going to QD, QC. You have your QB and QA. Okay, initially all are 0, 0, 0. Okay, now there's a no pulse, these are state 0, 0, 0. Okay, now I am giving a number 1, 0, 1 to here. Okay, so first I am giving this 1 here. Okay, I am inserting this number to input, so I am giving serially. Okay, so I am giving 1 here. Now here is a 1, here already 0. Okay, because QD is 0, so here we have 0. Okay, QC is 0, we have 0 here. Okay, QA we have 0 here. Input is, this is the input of C. Okay, so now I'm giving 1 here. Now I'm applying clock. So when I'm applying clock, अब क्या हो जाएगा? When I'm applying clock, तो ये QD एप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसके लिए 0 इनपुट 0 है तो ये इसका आउटपुट 0 आएगा, इसके इनपुट 0 है तो ये 0 आएगा, इसके लिए 0 है तो ये 0 आएगा, इसका आउटपुट 0 आएगा, इसका आउटपुट का, इसका QA का आउटपुट 0 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट से पहले क्या करूंगा मैं, इसको ये 0 सीरियली, आई एम डूइंग सीरियसली इन, तो बंद तो हो गया, अब यहाँ पे 0 आएगा। ओके, यहाँ पे 0 आएगा। सो नाउ अगेन आई एम गिविंग क्लॉक। सो क्लॉक आएंगे तो अब यहाँ पर क्या है, इनपुट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ओके, यहाँ पे इनपुट 1 था QC पे, तो ये 1 अंदर जाएगा, इज 1। ओके, तो शिफ्ट हो रहा है ना, अब ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, और ये जो लास्ट वाला 0 है वो तो बाहर हो जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है। क्लियर सर? सेकेंड वाले केस में आपने इनपुट ही 0 दिया। सेकंड वाला इनपुट का 0, हाँ इनपुट ही 0 दिया, इनपुट ही 0 दिया मैंने। यस सर। ये इनपुट ही 0 दिया। ओके सर। और यहाँ पहले से 1 था ही। ओके, ये इसके लिए इनपुट बन गया, ये इसके लिए इनपुट बन गया, ये इसके लिए इनपुट बन गया, ये इसके लिए इनपुट बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हाँ बोलो। LSB ऐसा कुछ है क्या? मतलब आप जो नंबर लिया है वो अब मतलब MSB से स्टार्ट करे, ऐसा क्यों है क्या? मतलब हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, ये ऐसा इसमें सीक्वेंस नहीं है, अभी आपको सीक्वेंस नहीं मिल रहा है ना, इसलिए आप पूछ रहे हो। ये शिफ्ट रजिस्टर है, इसमें सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। ओके, so you can say this is MS, you can say this is your MSB। so मैं पहले इसमें ये LSB, ये आपका MSB है। ओके, MSB है। ओके, so I'm adding this is serially। okay, this is your LSB। so now I have introduced first 1, then I introduce 0। okay, next I'm introducing 1। okay, and applying clock, तो क्या होगा? sorry, next time क्या होगा? now I'm applying 1, correct। okay, now I'm giving input 1 and giving clock, so I'm giving clock, this become 1। okay, this was 0, this becomes 0। okay, or sorry, this now I'm giving clock 1। okay, here, so this become 1। और इस पे क्या था? 0 था। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, और इस पे क्या था? ये 1 था, तो ये 1 हो जाएगा, इस पे 0 था, 0 हो जाएगा। सो नाउ दिस विल बिकम 1 0 1 0। ओके, नेक्स्ट क्या होगा बताओ? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगेन आई एम गिविंग 1। ओके, तो ये 1 1 0 1 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये तो 0 बाहर हो जाएगा। सो 1 1 0 1। हाँ, तो जो हमने एंटर किया था 1 1 0 1, वही इसमें आ गया 1 1 0 1। सर ये 1 कैसे हो गया? मतलब अरे भाई यहाँ से इनपुट दे रहे हैं ना, पहले 1 दिया, फिर 0 दिया, फिर जो इनपुट देंगे वही तो आउटपुट पे QD में आएगा। भैया 1 दे रहे हो, फिर मैंने 1 दिया तो 1 आ गया, बाकी सब पे 0 0 था, 0 आ गया, फिर मैंने इसको 0 दिया, फिर जैसे पल्स चालू किया, दिस इज आफ्टर पल्स। ओके, या आफ्टर पल्स है, आफ्टर पल्स। फिर सेकंड टाइम, फिर मैं थर्ड टाइम मैंने इसको फिर 1 दिया, थर्ड पल्स, पहले 1 दिया, फिर थर्ड पल्स दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये आगे शिफ्ट होता गया, जिसके जो शिफ्ट होता गया आगे। ओके, दिस आफ्टर पल्स। तो सर जो हमें चाहिए उसके अगर 3 बिट हमें मिल गए तो उसके बाद हमें अपने आप दे देना है?
हाँ अपने वो अपने आप क्या, वो देख लो ना, वो शिफ्ट हो ही रहा है भी, जो यहाँ पर था वो Okay, यहाँ आ गई, वो पहले ये यहाँ था, फिर वो क्लॉक देने पे यहाँ आ गया था, फिर जो क्लॉक देने पे ये वाला यहाँ पे आ गया था, तो शिफ्ट तो हो रहा है ना अपने आप ही okay sir. क्लॉक के Yes साथ sir, में, yes sir. हो रहा है. सिंक्रोनस है, एक ही क्लॉक के साथ Okay. सब शिफ्ट हो रहे हैं. ओके, these are getting shift with the clock pulse. That's why this is a serial. Okay, so अब ये आ Sir, गया. सर हाँ, इसमें जो इनपुट सर, ये- देंगे वो हम खुद चेंज करते जाएंगे जो हम क्यूडी को दे रहे हैं, हाँ, जैसे yes, very 0 1 बस 0 बस 1 फिर दोबारा से 1 जो हाँ, हमें चाहिए उसके लिए। जो देंगे बस, जो वो 1 दे देंगे, फिर पल्स दे देंगे, फिर जिसपे जो इनपुट है वो उसका आउटपुट आ जाएगा. मतलब Okay. हमें शिफ्ट कराना है, तब तक हमारा जब तक जो हमें आउटपुट चाहिए वो नहीं आ जाता। जस्ट बिल्कुल बिल्कुल. ओके, करेक्ट. ओके, सर हाँ ये जो बोलिए. हमने 1 2 3 4 लिखा है, ये सिर्फ सीरियल नंबर है या फिर कुछ सिग्निफिकेंस है इसका? ये ना हमारा नंबर है. दिस इज अ सीरियली इन रजिस्टर. तो आपको नंबर को सीरियली इन करना है, एक ही करके सीरियली इन कर रहे हैं हम लोग, एक साथ इकट्ठा नहीं दे रहे हैं. समझ रहे हो ना, हम क्यूडी को दे रहे हैं, एक ही इनपुट को स्टेप्स हैं ये हमारे, हाँ स्टेप्स हैं ये जो हमने यहाँ पे हाँ, क्लॉक हाँ. में 1 2 3 4 लिखा है. हाँ, क्लॉक में ये क्लॉक पल्सेस हैं. ओके, पल्स 1 नेगेटिव, जब नेगेटिव ये क्लॉक पल्सेस है. ओके, दिस इज क्लॉक पल्सेस, दिस इज 1 2 3 4. अगर नेगेटिव ट्रिगर है तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, फिर इस पे ट्रांजिशन होगा, फिर इस पे ट्रांजिशन होगा, फिर इस पे ट्रांजिशन होगा. क्लॉक 1 और ये सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज 1 2 3 4. ओके, अगर लेवल ट्रिगर तो 1 पे ट्रांजिशन हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे हुआ. सर फिर 1 0 0 1 कैसे बनाएंगे सर? किसमें 1 0 0 1 सर. बनाएंगे, किससे मतलब, तुम क्लॉक देते सर रहो. एक बार बता दो सर. क्लॉक मैंने तो ऐसे दी है सर, पहले 0 0 फिर 1 0 0, मतलब कि जो आपकी फर्स्ट है. हाँ, फिर मैंने सेकंड वाली दी है, हाँ. उसके बाद थर्ड वाली में मैंने 1 नहीं दिया, 0 दिया सर इनपुट. 0 तुमने- 0 1 एंड 0 और फिर उसके बाद 1. अब ऐसे वो तो कुछ भी दो ना, तो तुम नंबर क्या नंबर बोल रहे हो, नंबर क्या बोल रहे हो? सर 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 हाँ, 0 1. यस सर. ये है ना, ये इनपुट Yes, दे रहे हो ना. हाँ, तो तुम क्या करोगे? यस सर. ओके, तो यू है, अभी इतना जगह थोड़ी है मेरे पास बनाने के लिए, छोटा बनाना पड़ेगा. ओके, सो यू हैव दिस क्लॉक. ओके, क्यू डी, क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए. ओके, so say initially they are 0 0 0 0. Okay, now you are applying 1 to the input. Okay, and then you are applying clock. जैसे ही मैंने क्लॉक अप्लाई किया, ओके, इस पे कोई इनपुट नहीं था, यहाँ पे 1 आ जाएगा. ओके, इस पे ये इनपुट था, ये यहाँ आ गया. इस पे ये इनपुट था, ये यहाँ आ गया. इस पे ये इनपुट था, यहाँ आ गया. ओके, now next time I'm giving 0 to input and I'm applying clock here, so here 0 will come. इसके ऊपर ये इनपुट था तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर ये इनपुट था तो ये आ गया, इसके ऊपर ये तो ये इनपुट आ जाएगा. ओके, नाउ इफ यू अप्लाइंग थर्ड पल्स, यू आर गिविंग 0, यू गिव 0 हियर. लेकिन इस पे इनपुट क्या था, ये था, तो ये 0 आ गया. ओके, इस पे इनपुट ये था, ये आ गया. इस पे इनपुट ये था, ये इधर जा गया. ओके, नाउ यू अप्लाई फोर्थ में यू आर अप्लाइंग इनपुट टू 1. ओके, तो ये 1 आ गया. अब इस पे ये इनपुट था तो 0, ये 0 इस पे आ गया, ये 1 इस पे आ गया. Again 1 0 0 1. Clear? यस सर. तो अभी आप इसको करोगे तो आगे नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी बताओ? नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, हमने सारे डाल दिया इसके अंदर, जो डाला था तुमने डाल दिया इसके अंदर. ओके, सो नाउ ओके, so this was your, मतलब वो वैसा ही रहेगा ना, हाँ बस ऐसे रहेगा ये. नहीं हो जाएगा. ये तो शिफ्ट रजिस्टर है, जितना डालेंगे हम जितने देंगे उतना ही जाएगा. ओके, सीरियल इन कर रहे हैं. सो दिस वाज द शिफ्ट रजिस्टर. नाउ लेट मी सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन दिस शिफ्ट सीरियल रजिस्टर. ओके, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं. सो से आई हैव a shift register. Okay, so this is A, this is B, okay, this is C, and this is D. Okay, and the initial state is 1 1 1 1. Okay, initial state मतलब क्या है? QA, QB, QC, QD. Output of this one output of this 2 1 1 0 1. This is the initial state,
इनिशियल स्टेट क्या होती है? QA, QB, QC, QD. The initial state is given to us 1 1 0 1. Okay, now it asking, now the circuit is given, they are given to clock to this one. Okay, and the input of A, इनपुट तो चाहिए इनका, स्टेट तो पता है हमको, स्टेट तो पता है कि इनपुट क्या है, इनपुट कहाँ से आ रहा है। जैसे हम इनपुट अभी सीरियल दे रहे थे ना, तो अभी इनपुट कैसे देंगे? तो इनपुट देने के लिए इन्होंने दे हैव गिवन वन गेट, ओके, एक्सॉर गेट, एंड द एक्सॉर गेट इनपुट इज योर A and D. These are the XOR gate input, and this input is going to here. Okay, so they are asking how after how number cycle of clock, okay, the term ABCD, okay, this is ABCD, QC का ABCD दिया है, after what clock, after how many clocks, okay, or number of clocks, okay, reach to state A B C D equal to 1 1 1. ओके, कितने क्लॉक के बाद में ये 1 1 पहुंचेगा? फटाफट कर दो, टाइम हो गया है। कितने क्लॉक के बाद में ये 1 1 1 पहुंचेगा? ओके, सो स्टार्टिंग स्टेट इज दिस वन, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन. ओके, A B C, 3 कैसे आएगा? आई एम स्टार्टिंग विद A B C D. ओके, and my initial state is 1 1 0 1. Okay, now I am applying clock 1. Okay, so when applying clock 1, what is the input of A? clock 1 के समय D और A और D का XOR क्या आएगा? 0 आएगा. वेरी गुड. यहाँ पे क्या आएगा? 0. ओके, 0. फिर 1 और इसका इनपुट क्या है? 0 0 1 1 0 1 1 1 0. वेरी गुड. ओके, सो 0 1. हाँ बोलो सर. इस क्लॉक में इनपुट कैसे दे रहे हैं सर? इनपुट यहाँ से दे रहे हैं ना, ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, इसका आउटपुट है D आउटपुट का, जो ऑलरेडी प्रेजेंट वो इस पे दे रहे हैं. ओके, बाहर से लगे ये वाला उस पे जा रहा है. हाँ, ओके सर. तो सेकंड क्लॉक पे क्या होगा? सेकंड क्लॉक पे आप देखो A और D को देखो, A और D क्या है? A और D 0 0. सर 0 ही होगा, सेकंड क्लॉक में 0 होगा. XOR very good, 0 ही होगा. ओके, XOR will be 0 and this will come but here, this will come here, this will come here. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट में ये 0 1 है, थर्ड प्लस में दिस 0 1 सर 1. वेरी गुड. 1 और ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1. वेरी गुड. ओके, नाउ फोर्थ क्लॉक पे क्या होगा? मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ABCD फोर्थ क्लॉक, A B C D. ओके, आई एम अप्लाइंग फोर्थ क्लॉक. फोर्थ क्लॉक पे क्या होगा? A और D 1 1 है तो वापस 0 हो जाएगा. ओके, 0 हियर 0 1 0 0 1 0 ये आएगा. ओके, यस सर. फिफ्थ पे क्या आएगा? 0 0 अगेन 0. करेक्ट, दिस 1 विल, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा. ओके, वेरी गुड. सिक्स्थ पे क्या होगा? सिक्स्थ पे क्या होगा? ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा. ओके, वेरी गुड. सेवंथ पे क्या होगा? सेवंथ पे 1 0 1, दिस 0 will come here. करेक्ट, 1 0 0 0 will come here, this 0 will come here. ओके, वेरी गुड. 8 पल्स पे क्या होगा? सर हाँ, 8 पे क्या होगा? 1 1 0 0. वेरी गुड. 1 1 0 0. 1 1 0 0. वेरी गुड. नाइन्थ पे क्या होगा? नाइन्थ पे क्या होगा? 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0. 10th पे क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1. Very good. Okay, so the answer is after 10 pulse, after 10 pulse, n equal to 10, n equal to 10 pulse पे आपका क्या हो जाएगा? आपका जो आउटपुट, जो आपका जो ABCD है, that will become 1 1 1. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नहीं है? यस सर. ओके, यस सर. हाँ, तो एक ऐसा कैसा होमवर्क देता हूँ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस सर. ओके, सो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, ये भी गेट एग्जाम में आया हुआ है. ओके, सो बस आपको ये करना है, A और D का A D लेना है, जो प्रेजेंट स्टेट है 1 1 लेना है. तो 1 1 जब भी एक्सोलेट कर 2 1 होंगे तो 0 आता है. ओके, तो 0 आ जाएगा.
फिर ये सब शिफ्ट हो जाएगा आगे। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना है आपको, ये इनपुट हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये इनपुट हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर एक 1 है तो एक्सोर गेट का आउटपुट क्या होता है, 1 आएगा। अगर इवन नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। अगर ऑड नंबर 1 है इनपुट है एक्सोर गेट में तो 1 आएगा। बस इतना याद रखना है। 0 0 है तो 0 आएगा। ओके सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज योर होमवर्क। So we have been given a register, okay, say 1 2 3 4, okay, this is q0, q1, q2, q3, okay. So the state of, I'm applying clock here, okay, I'm giving clock here, and the initial state is 0 1 1 0, okay. The initial state is 0 1 0, and the input of Q0 is connected again with the XOR gate, okay, and XOR gate is connected with Q2 and Q3, Q2 and Q3. This time this is the XOR gate, okay. Now you're asking after how many pulse, okay, or after how many pulse, or after which pulse the output will be 1 0 1 0, okay. After how many pulse, okay, after how many pulse, okay, the state will be, the state, okay, will be 1 0 1 0. तो ये आपको पता करना है। दिस इज योर होमवर्क। सर एक्सोर गेट है ये? एक्सोर गेट है। So I'm stopping here. सर हाँ बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, वो जो हमारे डिजिटल के सर नोट्स अभी तक ट्यूटोरियल्स वगैरह अपलोड नहीं हुए हाँ हैं जो हाँ उस पे हाँ, है। मैं करवा दूंगा उसको, ठीक है। ओके सर। चलो सर और एक बात सर, हाँ सर वो बाइनरी एडिशन एंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन वो भी नहीं हुआ सर। हाँ वो भी करा देंगे। वो कन्वर्जन तो आसान होता है, तुम लोग को कन्वर्जन तो आता ही है यार। कन्वर्जन में क्या है, कन्वर्जन तो हाँ सर वो तो 12th के बच्चे भी करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन जी तो सर। बड़ा आसान चीज है। अभी हमको फिर डिजिटल, हमको सॉलिड तो करना है। तुम्हारा एग्जाम कब से तुम्हारा? हाँ हेलो। हाँ हाँ, व्हेन इज एग्जाम? सर सर, 4th स्टेप में आ रहा है सर 1010। हाँ क्लॉक पता नहीं, क्लॉक नंबर पता नहीं, वो क्लॉक पता नहीं कौन सा। हाँ 4 स्टेप मतलब क्लॉक कितनी है, 3rd है ना? यस सर, क्लॉक 3 है सर, 3 के हाँ बाद आ जा रहा है। वेरी गुड, ओके सही है। ओके सर। ओके सो आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके तो जब भी अभी टाइम बचेगा, अभी तो एक दो क्लास और लेंगे, और फिर टाइम बचेगा तब कन्वर्जन भी करेंगे। बीच बीच में कर लेंगे, पहले सॉलिड शुरू कर देंगे और बीच बीच में आपका कन्वर्जन संडे को कभी बुला के आपका कन्वर्जन खत्म कर देंगे। ओके सर।